A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So you know very well that from the previous few classes we are continuously studying the chapter, that is we are studying the CBSE sample paper 2021-22 which is issued by the CBSE, right? So we are continuously solving the different questions of the sample paper, right? So we have solved numbers of the questions related to this topic. Okay, so let us discuss the another questions of the sample paper. So till the question number I think 29 we have already discussed. Okay, so in today's class we are going to study or discuss the another questions of this sample paper. So question number 30. So you know, you can see that there is also one question is given which is based on the that is the table is given or the bar diagram is given. So for this the question is given that on the basis of the given bar diagram identify the state which are able to reduce the poverty level as compared to the state between the 1973 to 2012. ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे. फिर नेक्स्ट है कह रहा है कि इंडिकेटर्स को करना है डेवलपमेंट इन एजुकेशन. ओके, सो ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो पहले हम लोग टिल क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और इसमें यही सारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिफरेंट असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं. ठीक है, आज जो हम लोग हैं वो डिफरेंट और क्वेश्चंस को भी देखेंगे. जैसे आपका क्या हो गया, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26. आई थिंक I have skipped the question number 26 in last class. At last I have seen that I have skipped the question. So first of all we will deal with the question number 26. Okay, so let's see what the question 26 asking about. So question number 26 is, yes, suppose in an economy. Okay, suppose question number this is the CBSE sample paper 2021 and 20, right? So now let's see the question number 26. Read the following statement. Read the following statement. Assertion and reason. Assertion and reason. Okay. So oh sorry. I have written the wrong one. Question number 26 is, suppose in an economy, suppose in an economy the initial deposit of rupees 400 crores led to the creation of total deposit
वर्थ रुपीज 4,000 crores. Okay, 4,000 crores. So under the given situation, the volume of reserve requirement would be the volume of reserve requirement would be, fill up the blank with correct alternative. Fill up the blank with correct alternative. ठीक है? So option is given here. Option A 0.01, option B 1, option C 0.1, option D 0.4. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है. चलो देखते हैं, इसको पहले समझते हैं. क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन इज सेइंग सपोज इन एन इकोनॉमी. ठीक है, एक इकोनॉमी है. इन द इनिशियल डिपॉजिट, ये जो कंसेप्ट है वो है आपका क्रेडिट क्रिएशन का बाय द कमर्शियल बैंक. ठीक है, तो जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितना है 400 करोड़ से, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट, जिसकी जो क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो टोटल डिपॉजिट हो रहा है वो 400 करोड़ हो जा रहा है. इनिशियल डिपॉजिट इज 400. आपको याद होगा जो हम लोग क्रेडिट क्रिएशन कंसेप्ट और टॉपिक पढ़े थे तो उसमें था ना, इनिशियल डिपॉजिटेड 1000, LRR होता था 20%, तो 1000 का 20% निकालते थे, कितना आ गया 200. कोई भी कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व अपने पास रखती थी, बाकी 800 वो उठा के क्या कर देती थी, लोन पे दे देती. याद आए? तो यहाँ पे यही पूछ रहा है. फिर एट द एंड जब आता था तो मल्टीप्लाई की वजह से 5000 हो जाता था. याद है? वो 1000 5000 में कन्वर्ट हो जाता. जो 1000 इनिशियल डिपॉजिट था वो ये 400, और जो टोटल बन रहा था दैट इज द 5000, वो ये टोटल डिपॉजिट है. ये आपके पास दे रखा है. अब पूछ ये रहा है इस क्वेश्चन में कि कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है, जो LRR डिसाइड करती है, वो यहाँ पे कितना रखी होगी. ठीक है, दिस इज दी योर बेसिक क्वेश्चन विच इज आस्किंग हियर. यहाँ पे यही पूछ रहा है कि LRR कमर्शियल सेंट्रल बैंक यहाँ पे कितना डिटरमिन की है, जो 400 का 4000 करोड़ को वो क्रिएट करे. ठीक है, तो उसमें यही ऑप्शन है. 0, जो वो है वो 0.01 होगा, 1 होगा, 0.1 होगा, 0.4 होगा. ठीक है, तो हम देखते हैं इसका हाउ वी कैलकुलेट. सो इट विल बी टोटल डिपॉजिट is equal to the initial deposit into 1 upon LRR. ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 अपॉन LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. आपके पास क्या है, टोटल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी, जो भी रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब LRR कितना सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है. वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन. टोटल डिपॉजिट इज ₹4,000 crores equal to initial deposit is 400 crore into 1 upon LRR. ठीक है, सो ये भी आपका करोड़ में है, रुपीज. तो कितना हो गया, 4000 इज इक्वल टू 400 अपॉन LRR. ठीक है, सो 4000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन LRR विच इज इक्वल टू 400. सो
Is it? I have to use that side. इसको यहाँ पे करते हैं. So LRR is equal to 400 divided by 4000. ठीक है, LRR is equal to 400 upon 4000. इसको कट करते हैं. 10 1 upon 10 आ गया. तो LRR की वैल्यू क्या आ गई? अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, मैं आपको डिवाइड करके भी इसको दिखा दे रही हूँ. 0.01 था ना. ठीक है. सो 1 upon 10 1, ये क्या आ गया आपका? 0.1. सो LRR विल बी दी 0.1. यहाँ पे LRR क्या हो जाएगा आपका? 0.1. अब इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी, 0.1. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट दी 1 more मार्क्स. आपको एक मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर. क्वेश्चन इज सो मच सिंपल, बट आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा कि एक्चुअली व्हाट इज आस्किंग हियर. यहाँ से वो आपको पूछ क्या रहा है. ठीक है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. और तो 27, 28, 29 हम लोग ने लास्ट क्लास में कर लिया था. अब जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 30. सो आई थिंक सो आई नीड मोर स्पेस बिकॉज वन टेबल इज गिवन हियर. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को एक टेबल दे रखा है, उस टेबल को समझना है. ठीक है. तो टेबल क्या है? कह रहा है कि फ्रॉम दी सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1. ठीक है. आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 इज फ्रॉम दी सेट ऑफ स्टेटमेंट सेट ऑफ गिवन इन कॉलम 1. कॉलम 1 में क्या दिया है? नेम ऑफ द स्कीम्स. एंड कॉलम 2 में दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम. ठीक है. स्कीम्स दिए हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए थे वो दे रखे हैं. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट. आपको यहाँ पे करेक्ट पेयर स्टेटमेंट का देखना है. ठीक है. दैट इज column 1 and column 2. ठीक है. column 1 में क्या है? that is name of the scheme. name of the scheme. scheme का name क्या है? इधर है objective of the poverty alleviation program. Objective of poverty alleviation program. ठीक है. यहाँ पे वो सारे स्कीम्स के नेम दिए होंगे. यहाँ पे क्या देगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग लेके चल रहे हैं. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओके. सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. एक इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है. इसका क्या जो भी ऑब्जेक्टिव क्या था वो था डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन. डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन. ठीक है. ये कह रहा है कि जो मनरेगा यूज हुआ था
उसका बेसिक मोटिव क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और हाउसिंग कंडीशन को ठीक करना, हाउसिंग कंडीशंस को ठीक करना, ये था। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, दैट इज पोषण अभियान, जिसको बोला जाता है मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जिसको बोलते हैं पोषण अभियान, दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम। इसका मोटिव कह रहा है कि गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर्स। सेकेंड इज गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर। ठीक है, और आपको पता है मिड डे मील क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? मिड डे मील हुआ था बिकॉज जो भी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को क्या है कि अट्रैक्ट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हों स्कूल में आए, उसके लिए मिड डे मील मतलब उनको मील प्रोवाइड किया जा रहा था। सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, उनको मिल्क, ये सारे प्रोडक्ट्स को जैसे खिचड़ी, ये सारे बना के दिए जाते हैं। बट इसके सामने कह रहा है कि वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। थर्ड है दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ऑप्शन सी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है, वो क्या है? हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप, हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप, elderly people by giving them pension, elderly people by giving them pension, by giving them pension. ठीक है, now the option, so this one is third. next क्या है? नेक्स्ट इज वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जो क्या कह रहा है? ऑप्शन फोर्थ इज इम्प्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द ठीक है, ये सारा दे रखा। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, ऑल्टरनेटिव्स, जिसमें कह रहा है ए का 1, ए ऑप्शन है, ए का 1, बी ऑप्शन है, बी का 2nd, सी ऑप्शन है, सी का 3rd एंड डी ऑप्शन है, डी का 4th। इसमें बेसिकली कह ये रहा है दैट इज कि ये जो सारा का कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है, इन दोनों कॉलम में विच वन इज करेक्ट? इन जो ऑप्शन मतलब ए जो दे रखा है, ए के सामने इसका ऑब्जेक्टिव दे रखा है, बी है, बी का इसका ऑब्जेक्टिव दे रखा है। जब भी ये सारे प्लान और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुए थे, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, उसका ऑब्जेक्टिव दे रखा है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, उसका ऑब्जेक्टिव दे रखा है। ये सारे दे रखे हैं और ये कह रहा है कि आपको इनमें से क्या करना है? विच वन इज करेक्ट, आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये पता है आपको, ये जो एक्ट आया था वो बेसिकली 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था। ठीक है, जो भी रूरल या अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो 100 डेज की उन लोग को जॉब के लिए आया था इन 365 डेज में। ठीक है, और उसको उन्हीं के अकॉर्डिंग पर डे उनको वेजेस दिया जाए। बट इसमें ये कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंडीशन को ठीक करने के लिए आया था।
तो यहीं पे देख के हमें पता चल रहा है कि दिस वन इज रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि पोषण अभियान मिड डे मील, जो मिड डे मील मैंने बताया कि फॉर दी प्राइमरी एजुकेशन में बेसिकली इसलिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हों, अट्रैक्ट हों, उनका जो भी हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन हो एजुकेशन का, साथ ही साथ लोगों को एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन भी मिले और इनरोलमेंट भी बच्चों का ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू दी अनस्किल्ड वर्कर, ये भी एकदम रॉन्ग है, सो ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था वो क्यों था, तो कह रहा है हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एजर्ली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन, कि जो भी एल्डर पीपल हैं जिनके पास जो क्या है डिपेंडेंट हैं और पीपल पे मतलब अपने जो भी बच्चे हैं डॉटर या सन, उनको क्या करना है, एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना है कि उन्हें एक पेंशन ही मिले। लास्ट है वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना कह रहा है कि यहाँ पे एक टर्म देंगे दैट इज यूजिंग आवास। आवास मीन्स घर, हाउस, ठीक है, आवास। अब इसमें कह रहा है वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना मिल रही है और इसके पीछे कह रहा है इम्प्रूविंग फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस। फूड में आवास की बात हो रही है, फूड के बारे में बता रहा है, तो ये भी एकदम गलत है। बचा क्या, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो बेसिकली क्या था, हेल्प करा था स्पेसिफिक ग्रुप को, एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन। सो दिस वन विल बी योर राइट। इसमें से कौन सा आपका सही हो गया, ऑप्शन सी का, और ये ए बी डी सारे क्या हो गए आपके रॉन्ग, ठीक है। तो यही ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपका ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर 4 पॉवर्टी ऑफ योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ भी आपका डिफरेंट नहीं है, आप ही के सिलेबस का, आप ही के बुक का, जो हर एक पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है, आपको देखना है और उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही और फोर्थ गलत, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस दैट इज दी जिसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा था, ठीक है। उस कॉलम 1 और कॉलम 2 में सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है दैट कि उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, एंड यू हैव टू करेक्ट दैट वन। सो सबसे पहले आपको पूरी नॉलेज क्या होनी चाहिए, यू हैव टू स्टडी दी ऑल दी बुक्स ऑफ दी बोर्ड, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज दी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और आपके कुछ भी आपका ऐसा नहीं है कि बाहर से आएगा दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। सो हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका ऐसे एक ग्राफ दे रहा, मतलब बार्स दे रखा है, जैसे आई थिंक्स आपको दिख रहा होगा, एंड यू हैव ऑल्सो दी पेपर है आपके पास 31, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फॉर द ईयर 1973 द उत्तर प्रदेश इंक्लूड्स द प्रेजेंट उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या था, उत्तराखंड अलग से था, मतलब उत्तराखंड उस टाइम उसी में था, अभी वो अलग है। मध्य प्रदेश इंक्लूड्स छत्तीसगढ़ और बिहार इंक्लूड्स झारखंड, बिहार में झारखंड था। सो फिगर शोइंग पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट, ठीक है। लार्ज स्टेट में पॉपुलेशन ये शो कर रहा है विच इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन 1973 to 2012. So on the basis of the given bar diagram, जो bar diagram दिया है, identify the states which are able to reduce the poverty level as compared to the other states between the 1973 to 2012, ठीक है। इसमें क्या है, डिफरेंट स्टेट्स दे रखे हैं, वेट अ मिनट, यस, डिफरेंट स्टेट्स दे रखे हैं और स्टेट्स के उनके डिफरेंट डेटा दे रखे हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट्स था जो क्या था पॉवर्टी को ईजिली रिड्यूस किया, जिसमें ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में आपका उत्तराखंड था, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था और बेसिकली बिहार में भी इंक्लूडेड था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है और आपका डेटा डायग्राम, बार डायग्राम दिया है, उस बार डायग्राम से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो इसमें आप जब देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, आप जब डायग्राम को देखोगे, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दी बेसिकली दी क्वेश्चन। सो इसमें जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका द क्वेश्चन नंबर 31 का डी। 31 का डी इज दैट इज
कि सबसे पहले क्या है, जो एबल है रिड्यूस पॉवर्टी को, दैट इज़ दी आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने किया, आप उसका टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा कम किया, 49 से 9 पे आया। देन राजस्थान में देखोगे तो 46 से 15 पे आया। देन वेस्ट बंगाल 63 से 20 पे आया। एंड देन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु आपका कहाँ से आया, 55 से 11. So option D will be the right answer. Okay? So it's all about your today's class. So we will continue to solve the another question in the next class. Thank you.